योगः कर्मसु कौशलम्. Namaskar everyone. I am Dr. Tejal Patel, Associate Professor, PP Savani University. Today I have an opportunity to connect with you and share my session on subconscious mind and conscious mind. So with this beautiful thought, let me start my session. Always focus on I. Rest is not in our control. It is very important to self-introspect before we are seeing what you have done, what you are doing. First, we ask ourselves what I am doing, what I should do. So if we able to control I, then nothing worried about whatever going on in our surrounding. Because we cannot control our surround environment, but definitely we can control ourselves. So this is topic, how to programming a subconscious mind. Dear participant, I did my MBA with HR and my interest areas are OB, HR, EI, emotional intelligence, and NLP, neuro linguistic proficiency. So that's why I have choose this topic, because everything we can control if we are able to control ourselves, that is I. And for that, to control that I, we need to programming our subconscious mind. Yes, it will be very interesting further. Just concentrate and be with me. So I am going to cover emotional intelligence and what about mind. Second, how our mind is perceived. And third, how to programming our subconscious mind. See, with this picture, which you can see right side corner, conscious mind and the unconscious mind. Yes, it is very, we can say very known image. It is very known image. Whatever we can see, this is our conscious mind. See, we can see the mountain, but whatever we are seeing upper side, more than double or triple, it is in our inner side. That mountain are rooted in deep, which we cannot see. So same our mind is also formed, also designed. Okay, inside out. Whatever you are seeing, it is all, we can say, a reflection of your subconscious mind. Okay, conscious mind is very much, you can say, whatever you are seeing, whatever you are hearing, whatever you are listening, this is all conscious mind. But how we are reacting on it, हम कैसे उसको respond करेंगे, that will decide by our subconscious mind. Yes, that's why I have chosen this topic, programming your subconscious mind. Okay, which is not in our control every time, right? Because our reaction are very quick when you are seeing the horror movie, when you are attending any very joyful function, when you are seeing accident on road. So our reaction come first. Okay, oh my God, shit, wow, amazing. So this is all our subconscious mind, how to react, how to respond, and why we should programming our subconscious mind. Before this, let's we see some fact about our mind. So fact about minds are, it is made of more than 80 billion neurons. See friends, it is very important to understand 80 billion neurons means जो भी हमारा ये माइंड है, इतना पोर्शन, उसके अंदर जितनी भी नर्व्स है, जो सिस्टम है, वो 80 बिलियन न्यूरॉन से बनी है.
not a 100,000 lakh, but it billions. तो जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो सारा प्रोसेस होता है 80 बिलियन न्यूरॉन्स में. ठीक है. तो ये न्यूरॉन्स जो प्रोसेस करता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वहां से हमारा रिएक्शन आता है. इट इज अ वायरिंग. जब हम स्विच ऑन करते तो हमें तो लगता है कि फट से लाइट जल गई, बट वो करंट कहाँ कहाँ से पास होके वो बल्ब जलाता है. तो जो करंट पास होता है, दैट इज अवर माइंड डिजाइन, which is designed by 80 billion neurons. At a time, it deals with more than 27 emotions. Yes. See, these six are the main emotions: anger, joy, surprise, disgust, sadness, fear. But at a time, our mind is dealing with 27 emotions. Why you need to understand this? क्योंकि आप जब कुछ देखते हो तो आपने तो you have seen one thing, you are seeing the rose, you are seeing the cup, you are seeing the movie. लेकिन वो जब आप देखते हो तो वो एक चीज 80 बिलियन न्यूरॉन्स को पास होती है, और कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिएक्शन होगा, वो एक या दो या तीन नहीं, 27 इमोशंस एट अ टाइम काम करती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंफ्यूज कि व्हाट रिएक्शन आई शुड गिव. नाउ ईच इमोशंस रिटेन फॉर 90 सेकेंड. ओके, इट इज नॉट इजी. Let me laugh, let me be sad, oh surprise, no, it will retain 90 second. So for 90 second you are conflicting with your 27 emotions. So why it is important? Because it has been studied that whatever decisions we are taking, emotions are playing the 80% role. So if it is positive, then there is nothing to worry. But just imagine if your emotions is anger, disgust, sad, then what kind of decision you will take. So that's why to programming a subconscious mind is very much important. So you can deal with 27 emotions for 90 seconds, it is okay. But if your subconscious mind is programming, then yes, you can always take a right decision, positive decisions. Then states and mind. Dear friends, it is very much important to understand the emotional states. Fine. So let me explain you what is the meaning of state first. State means mood. आपका मूड कैसा है, अभी आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड. ऐसा बार बार हम दिन में कितनी बार यूज करते हैं. मम्मी आज आपका मूड अच्छा हो तो ही मैं बात करूं. पापा अगर आपका मूड अच्छा हो तो मैं आपको एक बात बताऊं. आपके बॉस, you must first try to know the mood of your boss, then only you can enter in his or her office. So that is emotional state. Fine. So emotional state are actually two different things. Okay, first the state is the physiological, that is the feelings that you are experiencing, and the emotion is the psychological interpretation or label you put on the state. ओके, तो स्टेट और इमोशंस दोनों अलग चीज है. ओके, ऐसा नहीं है कि आपका इमोशन, अभी आप दुखी हो तो आपका स्टेट क्या होगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग. लेट वी अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. सी, वेयर डू इमोशंस कम फ्रॉम. यहाँ आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड व्हाट इज इमोशंस. ओके, ये हमें क्यों समझना है, दिस विल हेल्प टू डिफाइन द इमोशंस. ठीक है, क्योंकि 80 बिलियन न्यूरॉन्स में जब 27 इमोशंस एक साथ काम करती है, तो आप जो भी स्टेट में हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब आपका इमोशंस क्या होना चाहिए वो आप तभी कंट्रोल कर पाओगे व्हेन यू कम टू नो अबाउट द स्टेट. सो फर्स्ट सिचुएशन,
ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कप फूट गया, दैट इज द सिचुएशन, ठीक है। तो आपके माइंड में थॉट आया, ओके, कि कप फूटा। अभी आपने सोचा यार ये तो मैंने जर्मनी से मंगवाया था, ये तो मेरी मम्मी का फेवरेट कप था, ठीक है। तो आपके माइंड में थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दैट थॉट क्रिएट योर स्टेट, वेदर इट विल बी नेगेटिव और इट विल बी पॉजिटिव, फाइन। दैट योर थॉट विल डिफाइन, योर थॉट विल डिसाइड। आप जैसा सोचोगे वैसा आपका स्टेट बनेगा, फाइन। अभी आपका स्टेट बन गया, मतलब आपको घबराहट होने लगी, तो डायरेक्टली इट विल इफेक्ट ऑन योर सम बॉडी पार्ट, fine. So there are a long theory कि when you are thinking, when you are in fear state, so which body part will be affected? When you are very much joyful state, then which body part will be affected? So it would be a very good interesting study if you can read further. So your thought will define your state, and then this state यू विल फर्दर गिव द लेबल कि अभी कप फूटा और आपको पता चला ये तो मेरी मम्मी का फेवरेट कप था, ये मेरी वाइफ या हस्बैंड का फेवरेट कप था, इसके बिना तो वो चाय कॉफी पीते ही नहीं थे। तो आप गुस्सा हो गए कि कैसे मुझसे कप फूट गया। तो जो भी आपके थॉट की वजह से आपका जो स्टेट बना उसको आपने लेबल दिया एंगर, और जो ये लेबल है उसकी वजह से आपके रिएक्शन आएंगे, सी द इमोशन, ठीक है। तो एंगर की वजह से आपके इमोशंस नेगेटिव आए, आप एकदम चिढ़ गए, गुस्सा हो गए अपने आप पर, ठीक है, कैसे कैसे हो गया। या तो अगर आपकी मम्मी ये देख लेगी तो उनका स्टेट बनेगा एंगर को, तो वो आप पर गुस्सा करेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन जो भी होती है उस पर हम सोचते हैं तो हमारा स्टेट बनता है, और वो स्टेट डिसाइड करता है कि हम कौन सी इमोशंस में जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर जो भी सिचुएशंस होती है उसमें हम जो रिएक्ट करते हैं उसके बाद जो वो रिएक्शन को जो हम नाम देंगे उसको हम इमोशंस बोलेंगे। सो दैट्स व्हाई स्टेट एंड इमोशंस आर टू डिफरेंट थिंग, फाइन। नाउ what is the logic behind this, why we should study the state? First let me give you one example. There was one semi-final match between India and South Africa at Kenya. Fine. At that match, before the final match, just before the final match, सचिन तेंदुलकर के फादर एक्सपायर हो जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ऑल ऑफ द वे केनिया से मुंबई आते हैं, अपने फादर की सारी क्रिमेशन प्रोसेस करके फिर से केनिया आ जाते हैं, क्योंकि उनको वो मैच खेलना था इंडिया के लिए, वो सेमीफाइनल था। और जब वो मैच खेलते हैं जस्ट द सेकंड डे ऑफ हिज फादर डेथ, ठीक है, उनके पापा एक्सपायर हो गए थे और दूसरे दिन उनको सेमीफाइनल खेलना था। और अगर आप में से किसी ने वो मैच देखा हो तो पता होगा उन्होंने वो मैच में 143 रन हीट किए थे, ठीक है। तो उनका स्टेट था, सिचुएशन थी, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने उसको इंटरप्रिटेशन क्या दिया, पॉजिटिव, कि मुझे मेरे पापा को श्रद्धांजलि देनी है, ओके, बाय हिटिंग द रन, इससे मेरे पापा को भी श्रद्धांजलि मिलेगी और मैं मेरे देश के लिए भी स्कोर कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपना स्टेट थॉट पॉजिटिव रखा, जिसका इंटरप्रिटेशन हुआ, लेबल हुआ, ही वॉज इन पॉजिटिव स्टेट, और उसकी वजह से वो पॉजिटिव इमोशंस की वजह से उन्होंने ये सिचुएशन में भी 143 रन बनाए थे और इंडिया फाइनल में आ गई था। सो दैट इज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑफ इमोशनल स्टेट। आप जितना सिचुएशन को समझ के उसको इंटरप्रिटेशन करके पॉजिटिव स्टेट में रहोगे, उतनी आपकी इमोशंस पॉजिटिव रहेगी। और इमोशंस पॉजिटिव रहना मतलब आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, आप वो सिचुएशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ अस लाइफ,
whether it is personal life or professional life. पूरे दिन में कितनी घटनाएं घटती है. अगर हम अपने माइंड को, अपने स्टेट को पॉजिटिव रखेंगे, रिसोर्सफुल रखेंगे, तो जो भी इमोशंस आएगी वो पॉजिटिव आएगी और हम वो सिचुएशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अगर कप फूटता है तो मम्मी गुस्सा ही होती है, ठीक है. लेकिन हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिखाना है कि कप फूट गया तो दूसरा लाके मम्मी को खुश भी कर सकते हैं. तो ये खुश करना, ये सिखाना ही ट्रिक है प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. नाउ दिस इज द थिंग, ऑलवेज give motions to your emotions, friend. Always give motion. Let that emotions pass away. Give them time. तो जितना आप इमोशंस को फिल्टर करोगे, फिल्टर करना मतलब योर इंटरप्रिटेशन ऑफ थॉट, जो सचिन तेंदुलकर के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, हाउ अवर माइंड इज परसीव्ड. हमारा माइंड कैसे सोचता है. सी पार्टिसिपेंट्स, अगर हमें पता होगा कि ये कैसे होता है तो ही हम वो प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे. तो अगर हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है कि वो हमेशा पॉजिटिव इमोशंस में रहे, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि वो परसीव कैसे करता है. बट बिफोर दिस लेट मी गिव यू सम research study. As per research, average of 2,500 to 3,300 thoughts per day. हमें पूरे दिन में इतने thoughts आते हैं friends. Now, average person has about 12,000 to 60,000 thoughts per day. ठीक है, जो average person है वो पूरे दिन में 12,000 से 60,000 तक सोचता है. ठीक है. नाउ सी द अनदर सीक्रेट थिंग व्हाई वी शुड स्टडी सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज दोस thousands of thoughts, 80% were negative and 90% were exactly the same repetitive thoughts as the day before. ठीक है, इतना सोचता है हमारा माइंड, चलिए ठीक है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है. ये सारे थॉट्स में से 80% थॉट हमारा माइंड नेगेटिव सोचता है. इसीलिए हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो ही हम वो 80% को फिल्टर कर करके पॉजिटिव थॉट्स में हमारे माइंड को ले जा सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट चेंजिंग द नेक्स्ट स्लाइड, I am telling you the small story. Okay, just listen. If anyone want, they can close their eyes also. Okay, I am starting the small story. चलिए, मैं आप सब लोगों को जंगल सफारी में ले जा रही हूँ. बहुत घना जंगल है. जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ है और बारिश की मौसम की वजह से जंगल एकदम हरा भरा दिख रहा है. पक्षियों की चहल पहल सुनाई दे रही है. अभी हम जंगल में थोड़े आगे जा रहे हैं. आगे जाते जाते हमें तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के छोटे 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 जीवाणु दिख रहे हैं. अभी मैं आपको जंगल के वो कोने में ले जा रही हूँ जहां बहुत सारे मंकी है, बंदर है. अभी देखिए, हाँ, आपको वो बंदर जो है उसमें लाल कलर के बंदर को नहीं देखना है. ठीक है, आप देखिए कितने सारे बंदर है, लेकिन उसमें जो लाल कलर का बंदर है ना वो मत देखिए. हाँ, और वो बंदर जो कूद रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं देखना है. बस मेरे साथ सीधे सीधे चलते रहिए. हाँ, आपको लाल बंदर और जो वो कूद रहे हैं वो बिल्कुल नहीं देखना है. अभी आगे जाते हैं और थोड़े प्राणी देखते हैं. ऐसे करके करके हमने बहुत मजे से जंगल सफारी को कंप्लीट किया. तो यहाँ पर स्टोरी मेरी कंप्लीट हो गई. अभी पार्टिसिपेंट, कोई मुझे बताएगा कि कितने जनों ने वो लाल कलर के मंकी नहीं देखे. सबने देखे.
राइट? कितने जनों ने वो जंप कर रहे, कूद रहे, वैसा नहीं देखा? मैडम, it is impossible. Yes, I am also agree with you. It is impossible. So the conclusion behind I have told this story is हमारी इमोशंस हमेशा मल्टीप्लाई होती है, वो कभी सब्सट्रैक्ट या डिवाइड नहीं होती। मैंने बोला नहीं देखना है तो आपका माइंड बंद नहीं हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से आप सोच सकते हो कि मुझे नहीं देखना है, सॉरी, कॉन्शियस माइंड से आप सोच सकते हो कि मुझे नहीं देखना है, और आप सुन भी सकते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो थॉट को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसे पता है रेड कलर जैसी चीज यूनिवर्स में है। और मंकी को आपने पहले भी, आज से पहले भी जंप करते हुए देखा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड 80 बिलियन न्यूरॉन ने कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करके रखा है। दैट्स वाई इमोशंस कभी भी हम जैसे कॉन्शियस माइंड चाहे वैसे नहीं समझती, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। इसीलिए आप सबने लाल मंकी भी देखे और उसको जंप करते हुए भी देखा, मैंने मना किया फिर भी। तो वो नेगेटिव इमोशंस पहले कैरी करता है और इमोशंस हमेशा मल्टीप्लाई होती है। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड कैसे परसीव करता है। सो दिस इज द स्मॉल डायग्राम हाउ अवर माइंड इज परसीव। तो इसके 5 स्टेप है फ्रेंड। फर्स्ट है रिसीवर। रिसीव मतलब हम जो वी मतलब विजुअलाइजेशन, ए मतलब ऑडिबल एंड के मतलब काइनेस्टिक, इट इज द साइंटिफिक नेम। के मतलब फीलिंग, योर इमोशंस। तो हम जब भी कोई इवेंट को रिसीव करते हैं, जब जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी बताई और मैंने बोला लाल कलर के मंकी को नहीं देखो, तो आपके माइंड ने तुरंत वी एक्टिव हो गया, विजुअलाइज किया, रेड कलर का मंकी आपने देखा। ऑडिबल, आपने सुना, मैंने बोला नहीं देखना है, फिर भी आपने लाल कलर का मंकी वो सुना नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने नहीं एक्सेप्ट किया। एंड के, दैट इज द फीलिंग, उसे एक फीलिंग बनी कि लाल कलर का मंकी जंप कर रहा है, आप वो फीलिंग में चले गए। तो हमारा माइंड इवेंट को रिसीव करता है, फिर वो प्रोसेस होती है। प्रोसेस कैसे होती है? वो प्रोसेस के दरमियान हम जो देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, उसमें से कोई चीजें हम डिलीट कर देते हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती, ठीक है, या तो फिर डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। जो हमारा माइंड रिसीव करता है वो सेम मैसेज हम पास नहीं करते। हमें लगता है हमारे बॉस को ये चीज नहीं बतानी है ये मैसेज में, तो हम वो निकाल देते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और कई बार हमारा माइंड सारी प्रोसेस को जनरलाइज कर देता है, कि उसको यूनिवर्सल बना देता है। यार मेरा हस्बैंड मुझे फोन नहीं करता, तो सामने वाली आपकी फ्रेंड बोलेगी हाँ यार सभी हस्बैंड शादी के बाद ऐसे ही हो जाते हैं। तो हमारे माइंड ने ये जनरलाइज कर दिया, सभी हस्बैंड को बुरा बना दिया कि सारे हस्बैंड शादी के बाद ऐसा ही करते हैं। तो हम जो रिसीव करते हैं वो सारा मैसेज एज इट इज प्रोसेस नहीं होता, उसका हमारा माइंड डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है या जनरलाइज करता है। तो उसके बाद जो नया मैसेज बनता है दैट इज इवेंट 2, जो हमारा माइंड ने परसीव किया। ओके, कि कैसे हमारा माइंड परसीव करता है। तो हम जो देखते हैं वो स्कैन होके हूबहू मैसेज नहीं जाता, उसको हम डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके इवेंट 2 बना लेते हैं, जिससे हमारा स्टेट बनता है। ठीक है, अगर कोई हमें पूछे कि भाई आपको जुग जुग जियो मूवी कैसी लगी, तो मूवी जो थी उसमें हम हमारी कई सारी चीज जोड़ देंगे कि यार वरुण धवन ने जो रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी मुझे नहीं अच्छी लगी, तो इसकी वजह से मूवी नहीं अच्छी है। कियारा आडवाणी अगर इस तरह से थोड़ा फोकस करती, कपड़े पहनती, तो ज्यादा अच्छी लगती। तो आपने वो मूवी को अपना कोई ओप दे दिया,
ठीक है, अपनी तरह से डिफाइन किया, और सामने वाले का स्टेट बनेगा कि मुझे वो मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये है कि आप जितना अपने माइंड को इवेंट वन को रिसोर्सफुल बनाओगे, जितना अच्छे से उसको देखोगे, सुनोगे, उसमें फीलिंग ऐड करोगे, उतना अच्छा आपका स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। फिर से मैं सचिन तेंदुलकर के एग्जाम्पल को यहाँ रिपीट करना चाहूंगी। रिसीव, सचिन तेंदुलकर को पता चला उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, तो उन्होंने वो जो सिचुएशन थी उसको कुछ किस तरह से प्रोसेस किया होगा ताकि उसका माइंड रिसोर्सफुल रहा, और उन्होंने वो स्टेट में भी 143 रन मारे थे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीजें देखते हो, सुनते हो या समझते हो, वो ये 3 तरह से प्रोसेस होती है, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज। तो ये 3 चीजों का आपको बहुत ही फिल्टर करना है। जितने अच्छे से आप प्रोसेस करोगे उतनी अच्छी इवेंट 2 बनेगी, मतलब आपका इवेंट जो स्टेट है वो इवेंट 2 पर डिपेंड करता है, और उसी तरह से आप एक्शन लोगे। नाउ हमें प्रोग्रामिंग क्यों करना है सबकॉन्शियस माइंड को? एक तो मैंने जैसे आपको सारे फैक्ट बताए कि हमारे माइंड में इतने बिलियन न्यूरॉन से बना है, और जो भी हम सोचते हैं उसमें से 80% चीजें नेगेटिव होती है, ठीक है। तो हम जो भी सोचते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, ठीक है। लेकिन उसको भाषा क्या देनी है, उसका रिस्पॉन्ड क्या होना है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। इसीलिए हम जितना सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन में रखेंगे, जितना प्रोग्रामिंग करेंगे, उतना हमारी इमोशंस पॉजिटिव होगी। और इमोशंस पॉजिटिव होना मतलब हम सिचुएशन को रिसोर्सफुल बना के एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं, जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जरूरी है। अभी देखिए, प्रोग्रामिंग करना बहुत सारे वेज है, लेकिन मैं आपको बहुत ही जो आप अच्छे से उसको कर सकते हो, डेली लाइफ में कर सकते हो, ऐसे 2-3 टिप्स बताऊंगी। सो मेडिटेशन, नो आई, आप 5 गिन सकते हो कि अगर आप नेगेटिव इमोशन में हो या तो आप बहुत ही गुस्से में हो, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो तब तक जो 60 सेकेंड तक आपकी इमोशंस रिटेन रहती है, 90 सेकेंड तक, तो ये आप अगर अपने आप में पॉज लोगे तो इमोशंस को आप थोड़ा फिल्टर कर पाओगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको डिसिप्लिन और गोल को माइंड में रख के करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है जो मेडिटेशन। नाउ मैं आज आपको एक सिंपल फॉर्मूला देती हूँ। पार्टिसिपेंट आप पहले तो इसको एक नोटबुक में लिख लीजिए। x प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू रिलैक्सेशन। यस, ये फॉर्मूला मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि ये बहुत ही इजी है। आप कहीं पर भी कभी भी ये फॉर्मूला करके आपके माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। आप अगर नेगेटिव इमोशन में हो तो ये फॉर्मूला से विद इन 10 मिनट या लेस देन 10 मिनट आप एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाओगे। तो ये कैसे करना है? पहले तो एक्स मतलब आप ब्रीद इन करोगे, तब आपको काउंट करना है कि आपने कितने काउंट में आपकी सांस को अंदर लिया। सी, आई एम डूइंग दिस। ओके, तो मैंने जब अंदर लिया तो मैंने काउंट किया मन में 1 2 3 4, तो मुझे पता चला मैंने 4 काउंट में ब्रीथ इन की, तो एक्स हो गया आपका 4। अगर मैंने ब्रीथ इन की तब काउंट हुआ 1 2 3 4 5, तो आपका एक्स होगा 5। अभी आप जब ब्रीथ इन कर रहे हो, आपने जो 5 सेकंड में सांस को अंदर लिया उसको 4x, मतलब अगर 4 काउंट में अंदर लिया तो 4 इंटू 4 16, 5 काउंट में अंदर लिया तो 4 इंटू 5 20। तो आपको वो 16 या 20 काउंट को, वो ब्रीथ को रिटेन करके रखना है, रोक के रखना है।
समझ रहे हैं? मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। और व्हाट इज 2x? फिर आप ब्रीथ आउट करोगे, श्वास को बाहर फेंकोगे, छोड़ोगे। तो अगर आपने 4 काउंट में अंदर लिया है तो 4 इंटू 2 हो गए 8। अगर आपने 5 काउंट में अंदर लिया है तो आपका x था 5, तो आपका 5 इंटू 2 10। तो आप 10 गिनते गिनते वो सांस को बाहर निकालोगे। अभी देखिए मैं करके दिखाती हूँ। पहले तो आपको एकदम रिलैक्स मोड में बैठना है। देखिए मैं सांस अंदर ले रही हूँ, मैं गिन रही हूँ, आपको मन में गिनना है। 1 2 3 4 5। 5 में अंदर ली। अभी 5 इंटू 4 20। 20 गिनते गिनते मुझे सांस को अंदर रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 काउंट करते करते मैंने सांस को छोड़ दिया। आप मन में गिनोगे, ठीक है, तो ही एक्सरसाइज कर पाओगे। बिलीव मी डियर फ्रेंड्स, आप ये 3 टाइम 10 बार करोगे पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन में 3 टाइम। और ये जो x प्लस 4x प्लस 2x वो 10 बार अगर आप करोगे तो आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स रहेगा। आप पूरे दिन पॉजिटिव स्टेट में रहोगे। और पॉजिटिव स्टेट में रहना मतलब हमेशा अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे। आप किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल में रहोगे, बैलेंस रहोगे। तो ये बहुत ही इजी वे है मेडिटेशन का। इसमें आपको कहीं पर भी कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं। आप आपकी ऑफिस की चेयर में बैठ के भी कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, गाड़ी में पीछे बैठे हो, वहां भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही सिंपल मेडिटेशन, ये आप अगर डेली करोगे और एटलीस्ट 45 डेज तक कंटिन्यू करोगे तो आपका माइंड एक बहुत ही कंट्रोल वे में आ जाएगा। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है टू कैच, टू ऑलवेज सी द पॉजिटिव इमोशंस। नाउ ये एक डीप मेडिटेशन है जो डेविड फेस्लियन ने दिया है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है डियर फ्रेंड्स। अगर आप इसको भी यूट्यूब पर चलाओगे तो आपका माइंड बहुत ही पीसफुल रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये जो भी लिंक है वो कॉपी कर देनी है और वो म्यूजिक चलाना है। और मैं जो कमांड दे रही हूँ अभी, वो कमांड को सिर्फ ये म्यूजिक के साथ आपको सुनना है, ठीक है। तो ये YouTube पर आपको मिल जाएगी ये लिंक, अगर आप वहां डालोगे। मैं अभी सिर्फ आपको कमांड दे रही हूँ। अगर आप अभी भी चाहो तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप ये लिंक को कॉपी करके YouTube पर अभी ये म्यूजिक स्टार्ट कर सकते हो। और मैं कमांड दूंगी, वो कमांड सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है। तो ये लिंक डाल के आप सर्च कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। फिर इसके बाद में आपको ये स्टेट ऑफ कमांड, मैं कमांड बोलूंगी, आपको बस वो पोजीशन में बैठ के उसको फॉलो करना है, ठीक है। इससे आपका माइंड बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेगा, बहुत ही मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट। You can search this link on YouTube, and when I will say, you will start this command and follow my words. Okay. अभी आप ये YouTube पर ये लिंक प्ले करने से पहले थोड़ी इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। आपको बहुत ही स्ट्रेट, आप जहां बैठे हो वहां बैठना है। आपके शोल्डर एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और फेस जो है वो थोड़ा ऐसे आपका ऊपर, बहुत ऐसे नहीं, थोड़ा 30 डिग्री, कि आपकी नजर ऊपर रहे, आप सीलिंग को देख सको, ठीक है। ये पोजीशन में आप सबको बैठना है, क्योंकि ये पोजीशन कॉन्फिडेंट लोगों की निशानी है। आप ऐसे बैठोगे तो इट इज लाइक यू आर वेरी टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड। सो स्ट्रेट योर शोल्डर
shoulder, sorry, and tilt your face towards ceiling. इस पोजीशन में आपको बैठना है. लंबी सांस लीजिए. अभी आप म्यूजिक ऑन कर सकते हो. टेक अ डीप ब्रीथिंग. छोड़िए. वन मोर टाइम. छोड़िए. वन मोर टाइम. छोड़िए. अभी हल्के से आप आपकी आंखें बंद कर दीजिए और जो म्यूजिक आपके पीछे चल रहा है उसके साथ मेरे कमांड को फॉलो कीजिए. आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंस लोगों के पोजीशन में बैठे हो. शोल्डर स्ट्रेट. आपका फेस थोड़ा सीलिंग की ओर और आंखें बंद. आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम शांत है. हल्की सी म्यूजिक आपके साथ आप सुन सकते हो. अभी मैं जो बोल रही हूँ वो शब्द को आप मेरे साथ रहकर सुनिए. आप बहुत ही शांत हो. आपका माइंड बहुत ही कंट्रोल में है. अभी देखिए आपके माइंड के भीतर से एक आवाज आ रही है. I am the most confident person on this earth. I am the motivated person on this earth. I am enjoying every moment of my life. Just listen this voice from the deep of your mind. Listen one more time and repeat with me in your mind only. You need not require to speak. Only you will think in your mind and speak with your heart with me. I am the most confident person on this earth. I am the motivated person on this earth. I am enjoying every moment of my life. Just repeatedly hear this voice. You are in very confident position. Shoulder is very straight. Your face is tilted towards the ceiling. Now try to see the facial expression with your mind, with your heart. You are smiling. Your heart is smiling. Every organ of your body are dancing. They are very much confident. They are enjoying every moment of life. See your face. You are smiling. You are enjoying the moment you are in. You are the most confident person on this earth. You are enjoying every moment of the life. You are always resourceful. Your state of mind is very resourceful. Be in this state for at least a minute. Keep your eyes closed. Enjoy this state. And with your heart, repeat the sentences what I have just said. Be in this state for at least 30 to 60 seconds. Close your eyes. Maintain your position. एक गहरी सांस लीजिए. छोड़िए. अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर और अब पूरे चेहरे पर लगाइए.
और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, पटपटाते हुए खोलिए। रिलैक्स। थोड़ा आप चेंज महसूस कर रहे होंगे, आपका माइंड थोड़ा शांत हो गया होगा। और पता है ये कमांड का बेनिफिट क्या है? अगर आप ये कमांड हर वीक में एक बार करोगे तो जब भी आप वो सिचुएशन में आते हो जहां नेगेटिव सिचुएशन, अगर आप ये कमांड थोड़ा याद करोगे कि आई एम द कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ, तो आप तुरंत ही रिसोर्सफुल पॉजिटिव माइंड में आ जाओगे। एक्सपीरियंस इट विल डेफिनेटली वर्क। ओके, सो विद दिस very positive command, I am ending my session. Okay, so you can read this thought by Sadhguru. I like a lot, and thank you so much. If you have any questions, any further information you will require, then you can contact me on tkp.4567@gmail.com, और मेरा नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है. Fine. So for further question, you can email me. I would very much happy to give the answer of your every question. Hope you have enjoyed my session and wish you a positive state of mind. Wish you a very controlled subconscious mind. Thank you. Thanks a lot.